Hare Krishna. I always share life in its entirety is a metaphor. Metaphor means it's symbolic. It's you have to make meanings out of it depending upon your inclinations. Just like Mahabharat, let's say. You think Mahabharat means that war which happened in Kurukshetra. But does the word Mahabharat mean anything like that? So it depends upon how you deduce meanings. When we talk about Mahabharata, you start thinking about a book, you start thinking about the war, you start thinking about who were fighting with whom, how many people were there. It all depends upon what you start thinking. I just spoke the word Mahabharata. So everything in this life is a metaphor, is a symbol, and you have to find meanings in it. If you go deeper, you might be able to agree with me that the word Mahabharat nowhere means a war. Presently, we call it Bharat, it's a geographic place. And the book is called Mahabharat, means the mighty, great Bharat, which was much bigger than this, and it had everything. Other world also, Krishna also, and this world also, the politics, the play, the words, everything which is happening, the war, everything which is happening. The war which happened in Kurukshetra, maybe one little aspect of it. Isn't it Mahabharat? One of our poets writes, इन उम्र से लंबी उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचता देखा नहीं. Now you can start thinking about Gulzar at this moment, or you may start thinking about what does he mean really. It all depends upon you, what you are made up of, and you will start finding meanings out of it. Hare Krishna. बस दौड़ती फिरती रहती हैं, हमने तो ठहरते देखा नहीं. इस अजनबी शहर में कोई अपना सा ढूंढता है. एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में आबो दाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है. So now what does the writer, the poet mean? It all depends upon what we think of. Nobody can be right or wrong. It was his thoughts, he wrote it. And you can start picturizing what does he actually mean. I can share with you what my heart says. कि कितनी भी बातें बातें करते रहे हम, कितनी भी जिंदगी जीते रहे हम, हमने जो देखा था सुना था, क्या कहें वो क्या था. जो कुछ भी हम एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं लाइफ में, सपना सलोना था, कुछ है नहीं. अंदर एक इंटेंस लॉन्गिंग है ठहराव की. बस दौड़ती फिरती रहती हैं, हमने तो ठहरते देखा नहीं. ये जो ठहराव है, इस ठहराव की सबको तलाश है. ये मुझे लगता है
शायद किसी को ना लगता हो. I was unfortunate or fortunate, whatever. By the age of 30, I had gotten convinced कि भोग से मेरी बात नहीं बनेगी. सो मुझे ये शब्द तो नहीं पता थे कि भोग क्या होता है और योग क्या होता है. आई डिड नॉट नो दिस jargon, टेक्निकल लैंग्वेज. jargon, ये तो मेरे को शब्द तो आते नहीं थे क्योंकि मैंने कोई कभी शास्त्र तो पढ़े नहीं थे. मगर इतना पता चल गया था कि मुझे पार्टीज में, नॉइस में, डांसेस में, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स में, विस्कीज में, वेरियस सच थिंग्स विच एवरीबडी डज. There's nothing wrong in them. Life is made like that. You must also enjoy it. And somebody who enjoys it is very fine, is good, happy at least. पर मेरे को अभी enjoyment खत्म हो गई थी. मुझे नहीं ठीक लगता था. The age of 30 I said कि मुझे ये सब नहीं चाहिए. मेरे को कोई राह दिखाए. ठीक है, मुझे गुरु के दर्शन हो गए. अनफॉर्चुनेटली कोई कह सकता है. कई लोगों को बोलता था क्या हो गया इसको, बाप ब्याले पीछे पै गया. ठीक है, उनके लिए तो मैं अनफॉर्चुनेट ही था ना. कि क्या हो गया इसको, अच्छा भला था आदमी, हमारे साथ बैठ के बातें बातें करता था, दारू पीता था. अभी क्या हो गया इसके, बाब्या बुब्बे के पीछे पै गया. तेनू की हो गया यार. चलो मैं कहता था मेरे को कुछ हो गया है, ठीक है, गलत हो गया या ठीक हो गया है, पर मुझे इसमें आराम मिल रहा है, ठहराव है. मैं आपको नहीं समझा सकता, पर मुझे आराम मिल रहा है. और वो एट द एज ऑफ 30 हो गया था. ठीक है, मुझे उस टाइम लगा कि अच्छा भोग कर लिया है मैंने, इसलिए मुझे अब ठहराव चाहिए. मगर फिर मैंने आई मेट अ लॉट ऑफ बिलवेड्स, यू नो, एटलीस्ट सम वन फ्यू जिनको बचपन से ही ज़रूरत नहीं है भोग की. ऐसे प्योर लोग भी होते हैं. मगर मैंने तो भोग करने के बाद लगा कि मुझे नहीं चाहिए सब. बट आई हैव मेट पीपल जिनको बचपन से ही कोई भोग वोग में शौक नहीं है, प्योर है. ऐसे भी लोग होते हैं. वो पिछले जन्म में कुछ किया होगा, एक्सपीरियंस उन्होंने. आफ्टर ऑल वी हैव ऑल इवॉल्व्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस. सो उन्होंने भी एनिमल लाइफ पिछले जन्म में लीड कर ली होगी. और मैंने भी शायद काफ़ी कर ली थी लीड. इसी टाइम कंडेंस्ड कोर्स किया 30 साल की उम्र तक भोग का. फिर उसके बाद थम गया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए. सो मुझे ठहराव मिल गया, मौन मिल गया, अंदर ही क्वाइट मिल गया. और उस क्वाइट से फ़ायदा क्या हुआ, ये शख्सियत बदल गई, पर्सनैलिटी बदल गई. उस पर्सनैलिटी से क्या फ़ायदा होता है कि आपका मुंह थोड़ा सा खिला ही रहता है. नहीं तो हम अगर दुखी दुखी रहें या डरते डरते रहें तो वैसा ही हमारा चेहरा बन जाता है. यू नो, विद एज वैसा ही चेहरा बन जाता है. उस वैसी ही झुर्रियाँ आ जाती हैं. झुर्रियाँ तो मेरे भी मुंह पे हैं, मगर वो स्माइल की हैं. और अदरवाइज फ्राउन की आ जाएंगी या कुछ डर की आ जाएंगी. जैसा जैसा आपकी पर्सनैलिटी बनेगी वो आपके चेहरे पे दिखना शुरू हो जाएगी विद टाइम. सो इट्स बेटर दैट अगर आप जल्दी शांत हो जाएं तो फिर वो शांति आपके चेहरे पे दिखना शुरू हो जाएगी. बट नॉट नेसेसरी. क्यों ना डरें लोग आपसे. तो ठीक है, कई लोग रहते ही ऐसे हैं, डरा के दुनिया डरनी चाहिए. वेरी फाइन. ऐसे वो बना के रखो, सब डरेंगे. दैट्स फाइन, इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन जो आपको सूट करे. सो मेरे को ऐसे लगा कि मुझे शांति चाहिए. और वो शांति फिर मुख पे भी ऐसे ही आ गई, स्माइल स्माइल. मेरी शादी हुई जब आई वॉज अबाउट 37, जिशा से जब शादी हुई तो आई फर्स्ट फर्स्ट नाइट ओनली आई टच्ड हर फीट. तो शी वॉज अ लिटिल, यू नो, फाउंड इट एबनॉर्मल. वैसे भी मेरी उम्र उससे कुछ 10-15 साल ज़्यादा है. तो आई व्हेन आई टच्ड हर फीट शी कंसिडर्ड इट एबनॉर्मल. तो मैंने बोला कि देखो, मेरे को रोको मत, मेरे को ऐसे ही रहने देना, मेरे को चरणों में ही रहने देना.
मगर तुम अगर मेरे से छोटी समझती हो अपने आप को, तो और मेरे से एडवाइस लेना चाहती हो, तो तुम भी सिर पे मत बैठना, तुम भी चरणों में ही रहना। फिर हमारी कभी लड़ाई नहीं होगी। वैसे तो लड़ाई एक हाथ से हो भी नहीं सकती। मैं जब चरणों में ही रहूंगा तो तुम क्या लड़ोगी मेरे से? तो बट तुम्हारी मर्जी है कि तुमने सिर पे बैठना है। अगर सिर पे बैठोगे तो मैं थोड़ा सा भी हिलूंगा तो तुम गिर जाओगे। मगर तुम भी अपना ज़मीन पे ही बैठ जाओ, हम दोनों ज़मीन पे ही बैठे रहेंगे। एंड सचमुच बताऊं कि मेरी कभी आज तक कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुई है दिशा के साथ। तो ये एक किस्म का राम राज्य है घर में। मैं घर का नाम प्रशांति निलयम रखा हुआ है, क्योंकि कोई लड़ाई वड़ाई तो होती नहीं, कोई तकरार नहीं होता। मैं तो हूं ही, बना हूं, ऐसा हूं। तो उसने भी अपने आप को ऐसा ही, मेरे सामने तो ऐसे ही रहती है वो। लोगों से, वो बच्चों से तकरार करती रहे तो खेलना वेलना भी तो होता है लोगों को। तो वो खेलती रहती है, अपने आप को एंटरटेनमेंट करती है, बच्चों के साथ लड़ाई वड़ाई कर लेती है। मगर मेरे साथ ऐसे ही रहती है वो भी, क्योंकि पता नहीं उसने भी आदत डाल ली ऐसे ही रहने। सो जिंदगी में ठहराव तो चाहिए सबको, चाहिए। मैं दिल से आपसे बातें कर रहा हूँ, और ठहराव ही चाहिए। बाकी तो ये सड़कें, उम्र से लंबी सड़कें, इतनी सारी बातें, इनसे बात नहीं बनती। मौन से ही बात बनती। जब प्यार बहुत गहरा हो जाता है ना, तो बातें थम जाती, उसको मौन बोलते। मैं सिंबल्स की बात कर रहा था, मेटाफॉर्स की बात कर रहा था। देखिए मेरे हाथ ऐसे उठे हुए हैं, आप समझेंगे मैं ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, कुछ भी समझ सकते हैं। या समझेंगे कि मैं अपने आप को बहुत कुछ समझता हूँ, आपकी मर्जी, कुछ भी समझ सकते हैं। आप 3 उंगलियों को देख सकते हैं, या मेरी उंगलियां, मेरी हाथ की रेखाएं देख सकते हैं, ये तो मर्जी है आपकी। या ये भी देख सकते हैं कि ये 2 उंगलियां क्यों मिली रहती हैं। ये प्रेम का एक प्रतीक है कि अंदर कुछ एक, 2 चीजें मिल चुकी हैं। ये जो 2 हंसों का जोड़ा है ना, ये बिछड़ा हुआ नहीं है, ये जुड़ चुका है। ये गाना है ना, 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे, जुलम भयो रामा, गजब भयो रे, गजब। ये कैसे हो जो बिछड़ गए दो जो हंस थे, परमहंस थे। और ये जो 3 उंगलियां, ये संसार है। संसार, जो महाभारत मैंने बोला, उसमें संसार भी है। कौरव है, पांडव है, लड़ाइयाँ हैं, सब कुछ है। उसके अंदर कृष्णा भी है, राधा भी है। महाभारत, महाभारत युद्ध नहीं, वो बहुत बड़ा भारत, जो शकुंतला के बेटे भरत के नाम पे इसको भारत बोल दिया गया, या जड़ भारत के नाम पे इसको भारत बोल दिया गया। जो भगवान जिसका रथी है, उसको भारत बोल दिया गया। महाभारत के अंदर ये कौरव पांडव सब ये कहाँ से निकले? ये सब व्यास जी के ही तो बेटे थे, आपको मालूम ही होगा। व्यासदेव जी के बेटे थे सबके सब, सबके सब। धृतराष्ट्र हो, पांडु हो, विदुर हो, किसके बेटे थे? उनके ही तो आगे सब कुछ चलता रहा ना। ये सब व्यासदेव जी के बच्चे हैं। आप कहानी जिनको नहीं पता होगी तो पढ़ लीजिएगा। और व्यासदेव जी कहाँ से आए? वो पराशर और सत्यवती का मिलन हुआ, व्यास देव जी का बर्थ हुआ। प्रवेश था वो, प्रसव नहीं था। पराशर, ऋषि पराशर और सत्यवती प्रेम स्वरूप थे।
दोनों का मिलन हुआ और उसमें से व्यास जी निकले, और व्यास जी ने सब, महाभारत के ग्रैंडफादर तो वही हुए ना। उन्हीं से फिर शुकदेव जी पैदा हुए। फिर शुकदेव जी ने व्यास देव जी की जो थॉट प्रोसेस थी उसको सुख सागर में लिख दिया, कृष्णा की स्टोरी बनी। Isn't it? So it depends upon how you look at things, how you perceive things. महाभारत का शब्द बोलते ही आपको कुरुक्षेत्र की युद्ध की बातें ना आ जाए मन में। तो पूरा संसार है, इसके अंदर ही राधा भी है, कृष्णा भी है, आप ही के अंदर, आप संसार है। उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं। उम्र कितनी जन्म लेते रहिए, मंजिल के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भागती दौड़ती रहती है। हमने तो ठहरते देखा नहीं। ठहराव की तलाश होगी तो ठहर जाओगे। जब चाहोगे कि मैं ठहर जाऊं, ठहर सकते हो। बार बार गुरु ग्रंथ साहिब कहता रहेगा, ठहरो ठहरो ठहरो, नहीं ठहरते। रहाओ का मतलब था ठहरो। रहाओ, रहाओ से ज्यादा कोई शब्द ऑफ्ट रिपीटेड नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब में कोई भी शब्द इतना ज्यादा बार यूज नहीं हुआ है जितना रहाओ हुआ। ठहरो ना, ठहरो ना, ठहरो। और मेरे कहने से थोड़ा कोई ठहरेगा। आपके दिल में आएगा कि मैं ठहर जाऊं, सब कुछ ठहर जाएगा। हरे राम। इस अजनबी से शहर में जाना पहचाना ढूंढता हूं। भगवान जो है ना वो अकेला है, बस उसको एक साथी चाहिए। एक, बहुत सारे नहीं, एक। गुरु नानक को बहुत सारे लोग नहीं चाहिए। गुरु नानक को सिख कम्युनिटी नहीं चाहिए, भेड़ चाल नहीं चाहिए। गुरु नानक को एक अंगद मिल गया, बस काफी है। सो एक चाहिए, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर। आबोदाना, आबोदाना क्या होता है? थोड़ा सा सस्टेनेंस, बस हवा पानी खाना, थोड़ा सा जिंदा रहने के लिए। और आशियाना, दिल, घर, एक घर ढूंढता है। भगवान एक घर ढूंढ रहा है, और वो घर क्या है? आपका दिल। जो उसको दिल दे दे, उसमें जाके वो बस जाता है, वहां ठहराव हो जाता है। क्योंकि भगवान तो मौन है ना, उसको एक मौन चाहिए। उसको भी चाहिए कि कोई और भी चाहता हो, कि मुझे ही चाहता हो, बस मौन ही चाहता हूं, बातें ना चाहता हूं। क्योंकि बातें तो उम्र से लंबी हैं, कभी खत्म नहीं होती। कभी दिल टूट जाता है, कभी दिल बन जाता है। हम क्यों शिकवा करें झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ। ये बातें खत्म करो कि मैंने ये देखा, मैंने वहां गया, मैं ये किया। ठहर जाओ, मेरे कहने से नहीं, अपने आप दिल करे तो ठहर जाओ। अगर दौड़ते फिरते ही रहना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक थकते नहीं हो, दौड़ फिर लो। सो मेरे को वो 30 साल की उम्र में एक ठहराव मिल गया, रुक गया, सब कुछ थम गया। और वो ऐसा ठहराव कि जिसने बोला कि बोलते हुए मौन रहो, काम करते हुए कुछ ना करो, घर में नहीं बैठ जाओ, सब कुछ करो मगर कुछ ना करो।
कर्मण्य अकर्मया पश्येत अकर्मणि च कर्मया। सो कृष्णा नहीं कहते कि काम ये जो अर्जुन को बोलते हैं कि लड़ाई वड़ाई बंद कर दो, नहीं, जो कुछ हो रहा है करते रहो मगर कुछ ना करो। हुक्म रजाई चलना नानक लिखा ना। ये हुक्म टू फोल्ड है। टू फोल्ड मतलब जो कुछ हो रहा है उसमें तो पार्टिसिपेट करना ही है, मगर अंदर से तो तुम वैसे भी अकेले हो। उस उस अकेलेपन को मिला लो अपने एक साथी के साथ। एक बुत बना लो अपने ही अंदर। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। बना लो एक सनम, एक सजन, उसके साथ जुड़े रहो हमेशा। उसको गुरु बोलो, ईश्वर बोलो, कुछ ठहराव आ जाएगा। हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वी आर ऑल चोजन वंस। बस मानने की जरूरत है। वी आर नॉट सो मेनी। अंदर सत्य एक ही है, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में आबुदाना ढूंढता है। हरे कृष्णा। हारना सीखना चाहिए। जीतना तो हमको सिखा दिया है दुनिया ने। हारना भी सीखना चाहिए। हारना ही सीख लो बस। जो दिल है ना, वो हमेशा ही दिमाग से नीचे रहता है। दिमाग को बोलता है तुम ऊपर रहो, मैं नीचे रह। और जिस दिन दिमाग बोलेगा कि मैं भी तुम्हारे सामने नमन करता हूं, तो बस फिर सब कुछ थम जाएगा। दिमाग अपने आप को कुछ समझना बंद कर देगा। जब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने जिशा से शादी हुई तो मैंने उसके हाथ पांव छुए, तो मतलब दिल तो मैं हूं ही। मैंने उसको बोला तुम दिमाग हो, तुम ऊपर ही रहो, मैं तो दिल हूं, मेरे को नीचे रहने दो। और तुम भी अगर झुक जाओ तो बात ही बन जाएगी। दोनों की बात बन जाएगी। मेरी तो बनी ही हुई है, क्योंकि मैं तो दिल हूँ, दिल की बात तो बनी होती है हमेशा ही। उसको किसी से कोई तकरार है ही नहीं। कोई भी अच्छा या बुरा लगता ही नहीं, सभी कुछ ठीक लगता है। हरे कृष्णा। सो ऐसे ही बन जाओ। कोई विस्की पीता है, पी लेने दो, क्या प्रॉब्लम है। आप हो सके तो ना पियो, मगर आप भी पीना चाहते तो पी लो, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था। जो कुछ भी आप देख सुन रहे हो वो एक सपना ही है। उसके अंदर एक क्वाइट आप बैठे हो, जिसको कभी कुछ नहीं होता, जो मरता वरता नहीं है, जो बूढ़ा नहीं होता कभी भी। वो वेद व्यास है, वो कृष्णा है, वो राधा है, वो दो हंस है, वो दो दिल हैं। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। ये संसार भी चल रहा है, मगर दो दिल तो हमेशा मिले हुए हैं ना। वही तो इम्पोर्टेंट है। संसार तो ऐसे चलता ही रहेगा। ये सतगुण है, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है, और ये आप है, और आपका परमात्मा है, आपका गुरु है। जुड़े रहिए, जुड़े रहिए।
Hare Krishna.